understand. Okay. So how we'll be proceeding further, I will let you know. Look, so far what we have seen is like different things related to this. I just wanted to go through this. We talked about this all different stuffs like if-else, nested if-else, string functions related to string. Few of the tricky things yesterday we have seen. Few are still left. Today we'll look forward for that too. हम लोग आज भी देख लेंगे उन चीजों को. उसके बाद टपल्स वगैरह देखा, डिक्शनरी, सेट, लिस्ट. उसमें से लिस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है. After that, we had seen our even control statements related to the break, continue, and pass. What is the difference between them? We have seen all the function related thing, global and local variables. Today, I will let you know. I will clear it out. Even importing the modules, how to import the different modules. हम लोगों ने देखा packages वगैरह क्या होते हैं और उसको import कैसे किया जाता है वो देखा हम लोगों ने. And today we'll go through the file handling part. File handling मतलब क्या होता है वो वगैरह भी बात करेंगे हम लोग. बहुत important part है और बहुत easy भी है, बहुत easy भी है. But once you understand that, it becomes very easy. We have checked out with the exception. So except clause. Except this clause is nothing but whatever error, value error, division error, zero division error. ये जो है उसको clause बोलते हैं. So you should not be worrying about exactly what is that stuff. And now, if time permits today, we'll start with the classes. This is the last part, but it is equally important that you should be knowing about. So we'll talk about the classes in the Python. Like it's a object-oriented programming concept. So we'll try to work out with that too. Okay? So let's start up with what we wanted. Okay, a very first thing that we will look forward for, few of the tricky stuff remaining, जो हम लोगों ने कल देखा वैसे हम लोग आज भी देखेंगे tricky stuff of Python, which will be helpful for you to attempt different questions altogether. उसमें स्वैप वगैरह होता है, स्वैपिंग बोलते हैं उसको, एक्सचेंज और स्वैप जो बोलते हैं हम लोग वो करेंगे हम लोग. We'll try to check out with the map. Map नाम का एक function है. What is mean by mapping and how it does that stuff. उसके बाद local and global variable देखेंगे. Global and local variables. What is mean by that? What is mean by that? We will try to understand. We'll try to understand that. Apart from that, we will look forward for file handling. So file handling will be an important task to work out with. File handling मतलब file में चीजें कैसे लिखी जाती है वगैरह. We'll work out with that too. And if time permits, we'll go for basics of classes in Python. Okay? So we'll look forward for this stuff today. So let's talk about swapping. In usual programming language, in any programming language, if I have a value of a as a 5 and b as a 6, what if I wish to change the contents of a and b and I want to swap the contents, मतलब a variable अभी 6 बनना चाहिए और b variable 5 बनना चाहिए. How the usual programming language like C, what it does is it takes a temporary variable. Temporary variable क्या करता है? Temporary variable a की वैल्यू स्टोर कर देता है. व्हाट इज मीन बाय दैट? टेम्पररी में 5 आ जाता है. ठीक है, उसके बाद क्या होता है? a में b की वैल्यू स्टोर की जाती है, सो दैट a becomes now 6 and afterwards then b is assigned the temp value. जो temp की वैल्यू है वो b को असाइन, so that b becomes 5.
So with this kind of an stuff, with this kind of an process, what it does is it swaps the value. Swapping मतलब एक एक वेरिएबल जो है ए वेरिएबल के कंटेंट्स बी वेरिएबल में और बी वेरिएबल के कंटेंट्स ए वेरिएबल में. अब ये लग टू वर्क आउट विद द स्वैपिंग. नाउ प्रोग्रामिंग में भी वगैरह क्यों लगता है स्वैपिंग, कहाँ पे लगता है? तो टेकआउट अगर मेरे को कोई वैल्यू जो है वैल्यू प्रोग्रामिंग के वक्त कि ये वाला जो प्रोग्राम का कंटेंट यहाँ पे ये साइड पे है और दूसरा साइड पे ये है, मेरे को कंपैरिजन करते वक्त क्या करना है? आई नीड टू कंपेयर बिटवीन दीज टू, एंड इसमें एक टेम्पररी वेरिएबल लेना क्यों चाहिए, जरूरी क्यों है यहाँ पे? क्योंकि it will store the value and it will transfer this. So additional memory यहाँ पे लगती है, memory यहाँ पे लगती है. But what is the purpose? Like ये ऐसा प्रोग्रामिंग का ये सिनेरियो क्यों आता है? तो the reason is कभी कभी एक काउंटर वगैरह रहता है ना, काउंटर, ठीक है? तो काउंटर क्या करता है? काउंटिंग करता है, काउंटिंग करता है. तो 0 से लेके like 10 or 100, it's the counting. Once it's reset, अभी कभी कभी क्या होता है, वैल्यू जब ये काउंट कर रहा रहता है तभी बीच में लाइट जा सकती है या कुछ भी हो सकता है. तो इसको बीच में ये स्टोर करना बहुत जरूरी होता है काउंटिंग करते वक्त. तो ये स्वैपिंग हेल्प क्या करता है यहाँ पे कि बाबा ये वैल्यूज जो है ये प्रीवियस वैल्यू थी. सपोज लाइक मैंने 5 तक की काउंटिंग किया और मैंने इसको बी में स्टोर करके रखा हुआ है. तो जब भी ये वापस लाइट आएगी तो ये बी से क्या करेगा? वापस ले लेगा वैल्यू और वहां से वो कंटिन्यू कर लेगा, एंड इसमें जो वैल्यू थी वो इसमें स्वैप करके दे देगा. तो स्वैपिंग हेल्प्स एक्चुअली even if you are exchanging information, ठीक है, एक्सचेंजिंग इन इंफॉर्मेशन, ठीक है. इंफॉर्मेशन अगर मैं एक्सचेंज कर रहा हूँ, लाइक अभी एक आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो रहते हैं ना, जिसके ऊपर ऐसा वाईफाई का सिंबल रहता है, टैप टैप टू गो करके, अगर सिर्फ करते हैं तो अगर 2000 या 5000 रुपीज के नीचे है तो यू डोंट नीड टू प्रेस योर पिन कार्ड, ठीक है, पिन नंबर वगैरह प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ती. तो यहाँ पे भी है ना, एक्चुअली इसके ऊपर जो कार्ड रहता है यहाँ पे एक छोटी सी चिप रहती है, छोटी सी चिप. तो इनके बीच में भी इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है. यस, ओके. ओ या, ओ यस, लुक, या, थैंक यू. आई हैड थॉट ऑफ, मेरे को लगा ही था. ओके, नाउ इज इट विजिबल? ठीक है. Yes, sir. Yeah, great. So we'll be looking forward for tricky stuff में हम लोग swap देखेंगे. We'll talk about the function. We'll talk about global and local variables. We'll discuss about the file handling. And उसके बाद अगर time permit करता है तो we'll go with the basics of the classes. ठीक है, classes देखेंगे हम लोग. So let's see. Like accordingly, I wanted to discuss about the swap. So let's do with the swapping. सो स्वैपिंग में होता क्या है, अगर a की वैल्यू 6 है और b की वैल्यू 5 है तो एक टेम्पररी वेरिएबल बनाता है ऐसे, और टेम्पररी वेरिएबल में ये वाला कंटेंट जो है ये वाला, ठीक है. तो a के कंटेंट टेम्प में ट्रांसफर किए जाते हैं, तो दैट टेम्प बिकम्स 6. नाउ आफ्टर दैट b जो कंटेंट है, b के कंटेंट a में ट्रांसफर करते हैं, तो दैट बिकम्स 5. एंड फाइनली टेम्प जो है वो टेम्प के कंटेंट बी में ट्रांसफर होते हैं, which becomes 6. So my initial value of a was 6. Now with the help of swapping it has become 6. But ये यूजुअल प्रोग्रामिंग में होता है, लाइक सी लैंग्वेज वगैरह में ये ऐसे तरीका यूज किया जाता है, जो टेम्पररी एक एडिशनल वेरिएबल जो है वो यूज किया जाता है. बट एज दिस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज वेरी सोफिस्टिकेटेड, in case of this, what happens is if I want to have x comma y, right, then
or even I can have a z, then I can assign value 3, 4, 5 also. And this assigns the value x equals to 3, y equals to 4 and z is equal to 5. ऐसे assign होता है किसमें? Python में. Python is having very rich capability in handling this kind of stuff. So comma operation जो है that does the trick actually. तो x, y, z अगर है तो ये सीधा सीधा क्या करता है, आपके जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है वो उसको असाइन कर देता है. एंड सिमिलरली ड्यू टू दिस it is easy for exchanging of values also. अभी देखो, let us take an example. x, y है और I am assigning like 7 and 9. Now if I write and if I try to print x, y, I will get the values as 7 and 9. ठीक है, 7 and 9 करके आएगा. अगर मैं ऐसा लिखता हूँ x, y equals to y, x. So with this, what happens is x will be assigned y and y will be assigned x directly. ये ऐसे values assign होते हैं, ठीक है. And जो भी previous values है वही assign होते हैं. So if I try to print now, if I try to print x, y, I will get 9 and 7. So swapping in this programming language is very, very easy. Let's go ahead. Let's go back. Like we'll try to run the codes. Okay. Okay. So let me go ahead with x, y. I will zoom in करता हूँ थोड़ा. तो x, y लिखा मैंने, 7, 9 लिखा, ठीक है. Now I will print value of x, individually print करते हैं, print value of y, ठीक है. Now if I run this, you can see that it prints 7, 9 without any problem, right? Now as I told you for the swapping, x, y equals to y, x. यहाँ पे swapping हो रहा है. What is mean by swapping? The values of x will be given to the y and y की value x में आएंगी. So we'll try to print now. Print. What to print? Print x, y only. ठीक है. So if I run now, you can see that ये x की वैल्यू 7 थी, y की वैल्यू 9 थी, अभी x की वैल्यू 9 हुई है और y की वैल्यू 7 हुई. Now even I can individually print the value of x also. So if I run this, you can see that its value is 9. Its value is 9. Even I told you like we can go ahead with x, y, z equals to 5, 6, 7, and then I can print x, y, z. So if I run this, I get the values individually. Likewise, you can go on like जितने चाहिए उतने numbers ले सकते हो आप. There is no like as such particular limitations. Z, W or Q. But the condition is only यहाँ पे जितने variables लिखे हैं ना, उतने variables इस side पे भी चाहिए. उतने variables के values जो है वो रहने ही चाहिए. अगर मेरे कम हो जाते हैं, मतलब अगर मैं यहाँ पे ये कम या ज्यादा देता हूँ, ठीक है, मैं कम या ज्यादा देता हूँ तो देयर विल बी एन असाइनमेंट प्रॉब्लम. ठीक है, अभी 3 + 4 7 मैच हो गया. ठीक है, अगर मैं ये ज्यादा देता हूँ, यू कैन सी दैट देयर इज एन वैल्यू एरर. मेरे पास वैल्यू तो है लेकिन असाइन करने के लिए वैल्यू मतलब वहां पर वेरिएबल नहीं है, तो टू मेनी वैल्यूज टू अनपैक. ठीक है, तो 21 है. अगर मैं कम देता हूँ वैल्यू, ठीक है, इफ आई पुट लेस वैल्यूज, ठीक है, so you can see not enough values to unpack. So try and understand, यहाँ पे जितने variables है उतने ही यहाँ पे मेरे पास values होने चाहिए. And then I can print the individual values. I can individually print the values. ठीक है, there is no problem. Now फोर्थ लोकेशन पे देखो W था तो W को 3 असाइन हुआ and we can go on. हम लोग इसको यूज कर सकते हैं. We can use this. Getting it?
सिंपल इनफ टू अंडरस्टैंड. एंड स्वैपिंग के लिए अगर मेरे पास 3 नंबर भी है, सपोज आई हैव 3 नंबर्स. लुक, मेरे पास 3 नंबर्स भी है, तीनों अलग अलग है. सो व्हाट आई कैन डू इज x, y, z. आई कैन असाइन इट एज z, x, y. और ऐसे भी असाइन कर सकता हूँ मैं. एंड देन आई कैन प्रिंट अगेन. सो x, y, z. If I run this, it exchanges accordingly. ये values exchange उसी according. हम लोग को ज्यादा यहाँ पे टेम्पररी वेरिएबल कैसे बनाता है या क्या होता है, डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस. बट यही आप सी लैंग्वेज में करने जाओगे तो यू रिक्वायर एटलीस्ट लाइक वन एडिशनल टेम्पररी वेरिएबल. एंड विदाउट टेम्पररी वेरिएबल भी होता है सी लैंग्वेज में, बट वहां पे लॉजिकल, फिर लॉजिकल एक्सॉरिंग या लॉजिकल एंडिंग या एडिशन या मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये एडिशनल ऑपरेशंस यूज करके आपको एक्सचेंज करना पड़ता है. बट यहाँ पे without doing that additional stuff, this becomes a very easy for us. The life becomes easy in this case. Now there is another function called as a map. Now that there is function called as a map. Okay? Mapping. What is mean by mapping? I will let you know now. Now let us imagine that. Okay? What this map function does is like it does a mapping of something to something. What is mean by something to something is if you have something like this. Let us take a function. If you are having a function, ठीक है, म्हणजे काय, let us imagine, अगर आप कभी so what mapping does, okay, अगर आप कभी होटल में खाना खाने के लिए गए हो, तो you give your order to a captain or like a waiter, ठीक है. तो वेटर क्या या कैप्टन क्या करता है, वो ऑर्डर ये करता है, नोट डाउन करता है और वो भेज देता है, और भेज के वापस आपको ला के देता है ऑर्डर को. ठीक है. तो ऐसे करके वो 1 2 3 अलग अलग टेबल के ऑर्डर्स लेके जाता है. ठीक है. और अलग अलग ऑर्डर लेके वो अंदर किचन में दे देता है. ठीक है. तो इस हिसाब से ही वहां पे जो आपने ऑर्डर दिए उस हिसाब से ही आपको प्रोडक्ट वापस मिलते हैं. राइट. आप जो टेबल पे, टेबल नंबर 1 2 3 4, इससे जो भी मिल रहा है, तो इन दोनों को मैच करके, मतलब यहाँ पे जो मेरे को ऑर्डर मिली है और उसके हिसाब से जो आउटपुट आ रहा है. ठीक है. तो ये जो अलग अलग है, ये सपोज ये फंक्शन है और ये आपके आर्ग्यूमेंट्स है जो आप भेज रहे हो. ठीक है. ये फंक्शन और आर्ग्यूमेंट, ये दोनों को मैप करके आउटपुट बनाता है ये मैप फंक्शन. व्हाट इट डज इज, मैप फंक्शन ये अलग अलग फंक्शन और उसको मिलने वाले आर्ग्यूमेंट अगर अलग अलग है, तो इन दोनों का मैपिंग करता है. इट डज द मैपिंग ऑफ दैट टू. इन दोनों का मैपिंग करने का काम करता है. So let us take an example. Let us take an example. What is the function? Let's define my fun, and then it takes the variable as an n, and what it returns is it returns let's say मैं text ले रहा हूँ and n dot lower. ठीक है. What it does is ये अगर कैपिटल है या कुछ एक आधा लेटर कैपिटल लेटर है, तो सबको वो लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है टेक्स्ट को, एंड ये वापस भेज देता है. नाउ लेट अस टेक अ मैपिंग. नाउ x equals to map. What I want to map is my function, so my fun comma round bracket में, let us take first as apple. ठीक है. Second argument I will be passing up is mango. ठीक है. Mango. Third pass will be, I will pass it as I can pass it as like bat, suppose.
ठीक है, and so on, like I can continue on this, ये 3 मैंने भेजे हैं अभी. Now with this, like I can print the value of x. ठीक है. What happens with this? My function is this function name. ये function name है. ये 1 2 3 ये इंडिविजुअल आर्ग्यूमेंट है. तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2, आर्ग्यूमेंट 3, ये मैं इंडिविजुअली मैं एक एक करके नहीं दे रहा हूँ एज ए इनपुट, मैंने इसको मैप किया. तो ये क्या करेगा, ये माय फंक्शन के एज एन आर्ग्यूमेंट पास होगा यहाँ पे n, और ये लोअर वैल्यू रिटर्न जो आई हुई है वो x जो है उसमें स्टोर होगी. इट बिकम्स एक्चुअली लिस्ट. ठीक है. तो लेट्स सी हाउ द थिंग्स वर्क. थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट वंस यू अंडरस्टैंड इट इज वेरी पावरफुल स्टफ. एक्चुअली मैप बहुत जगह पे यूज होता है. मैपिंग आप इमेज प्रोसेसिंग एल्गोरिदम रहने दो, या पांडास वगैरह में भी अगर मेरे को कोई फिल्टर वगैरह लगाना है, इफ आई विश टू अप्लाई अ फिल्टर टू अ इमेज और अप्लाई अ फिल्टर टू अ डेटा, देन आई कैन यूज अ मैप. ठीक है. सो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू मैपिंग के लिए. So let's define a function, define my function, which takes the argument n and it returns n dot lower, जो भी वैल्यू आती है उसको लोअर केस में कन्वर्ट करता है और भेज देता है. Then x is map my function, this is an like function, and then I will have a values. I can have an apple. I will keep it as a capital apple. उसके बाद mango, right? And then you can have bat, and so on and so forth. Like how many you wish, you can write it up, and then you can print the value of x also. Okay. So if I run this, okay, map object at x. Even if I run this way, okay, I can run that. Every time instead I can print here itself. Print. Okay, so that you'll get it. Print करेंगे rather than it returning something. Okay, my function, its values we are mapping with. ठीक है. Oh yes. One of the thing which is very unusual. Let's go ahead and do this one. Return len of n. Okay. And now what I can do is, if I run this and if I try to print the value of x, okay, map object at this address we are getting. Now what happens is, ये जो function है, ठीक है, what it is doing actually, when we are passing this argument, it is giving जो function है और वो iterables है, उसका return जो value दे रहा है वो एक जगह पे दे रहा है. ठीक है. So if we try it now, try to print this object. ठीक है. Map object, suppose x, if I do it this way. Now if I run this, map object at x equals to 0. Okay, but it should print the value of x. So if I wish to print the value, and oh yeah, absolutely. Actually, x becomes the address actually, and that's why we need to like make it as list. So I need to, rather than here, I should make it as a list here. So if I now run this, you can get the length of this. What is this? Is in length. So apple का length क्या है? 5 है. इसका length भी 5 है. इसका length 3 है.
and even I can go with the lower and dot lower. ठीक है. So if I run this, I get in lower. So apple एक lower है, mango एक lower है. So अगर x सिर्फ x पकड़ता हो तो that becomes an address of this particular list. And now if I print the list of that particular address जो location पे लिखा हुआ है, then I get the value of that. Only x will be an address for that map. So mapping, what it does is mapping, ये arguments उसको pass किया जाता है. ठीक है. I can pass multiple arguments also. I can have like red, and then I can have train also. ठीक है. This will convert it into a lowercase, all the lowercase, and I can even go with the uppercase also, all in uppercase. So lower का पूरा वो uppercase भी बना था. So we'll take another example. ये तो है ही, मतलब ये 1 to 1. सर यहाँ पे अगर मेरा और एक वेरिएबल रहे, सपोज मेरे को एडिशन करना है, मेरे को एडिशन ऑफ दी करना है. So if I do that, if I will define the function as my add a comma b, suppose. ठीक है. And I will return the value which is a plus b. ठीक है, दोनों का एडिशन करके जो वैल्यू आती है. नाउ आई कैन मैप x इक्वल्स टू ही लेना है क्या? नहीं, z इक्वल्स टू भी ले सकते हैं. मैप किसको मैप करना है अभी? आई कैन मैप माई फंक्शन और माई एड नेम ऑफ दैट फंक्शन कॉमा. नाउ इन फर्स्ट केस 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5, and then I can have another like ये 5 comma 4 comma 3 comma 2 comma 1. इसमें एक ही ध्यान देना है कि नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हियर एंड नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हियर शुड बी इक्वल. अगर वो अलग अलग है, नंबर अलग अलग है, तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम और देयर विल बी एरर. ठीक है. नाउ दिस मैप्स पर्टिकुलरली दिस पर्टिकुलर फंक्शन को ये वाले इसमें जो लिए वैल्यूज है वो वैल्यूज एज अ ए आर्ग्यूमेंट करके जाएगी. इसमें दी वैल्यूज जो है वो बी आर्ग्यूमेंट करके जाएगी. ठीक है. Now with that, like I can print the value of z, list z. This becomes a list z, and this should give me a 5 plus 1 which is 6, 2 plus 4 which is 6, 3 plus 3 which is 6, 4 plus 2 is in 6, and 5 plus 1 is in 6. So every time I will get, so all the time 5 times 6 I will get the answer. So let's see how we get that. So if I run this, I should get the value. So you can see that the addition has been achieved. So what you can do is you can write any function, we can pass the values in the form of argument, and then we can get the values back. Okay? We can get the values back. येते लक्षात? हे समजते का? Yes, people. ह्याच्यामध्ये कुठे काय अडचण? Even you can go with 3 arguments. You can go with multiple arguments. It is mapping. What it maps is function के जो भी arguments है. तो कभी कभी क्या होता है, ये फायदा कहाँ होता है? Look, if there is a data coming stream wise data आ रहा है, मतलब suppose कुछ ऐसा है scenario. ठीक है. The scenario is something like this. So let us take that. There is a road और रोड के ऊपर से ये व्हीकल्स पास हो रहे हैं. ठीक है. और यहाँ पे मेरा एक सेंसर बिठाया है मैंने. So there is a sensor which whenever there will be a vehicle will be passed, यहाँ पे vehicle जब भी जाएगी तो ये क्या करेगा, ये सेंसर हिट देगा. ठीक है. जस्ट सेकेंड, एक ही सेकेंड. I will
Yeah, sorry for the interrupt actually. Don't worry. Let's continue on. ठीक है? Yeah, I was talking about the example where the data, यहाँ पे जब भी ये vehicle pass करेगी, there will be an argument coming up. ठीक है? So number 1, number 2, number 3, number 4, like so many vehicles, जितने भी vehicles, और ये जब vehicle का number आ रहा है, मेरे को update करते जाना है कि कितने number का ये आ रहा है vehicle. So what I can do is I can map the function to count on. ठीक है? Map कर सकता हूँ मैं CNT vehicle, count the vehicle numbers, vehicles. ठीक है? काउंट द व्हीकल्स, और जो भी यहाँ पे ये जो है यहाँ पे मैं x करके लिख दूंगा और ये z को मैप हो जाएगा. सो व्हाट इट विल डू इज x इज कमिंग फ्रॉम दिस, ये जो है ना काउंट नंबर, और ये CNT व्हीकल ये वाले फंक्शन को जाएगा जहाँ पे x जो वैल्यू है वो प्लस कर देगा, प्लस प्लस. तो जितने भी व्हीकल्स ऑलरेडी पास हुए उसमें, मतलब पहले एक व्हीकल गया, दूसरी व्हीकल गई, तीसरी व्हीकल गई, चौथी, so that it will increase the count by 1. Every time whenever this x will appear, it will increase the count by 1. ठीक है? तो ऐसे वाले काम में हम लोग ये मैपिंग वाला फंक्शन इजीली यूज कर सकते हैं, so that it becomes easy to manage this stuff. ठीक है? मैनेज करने के लिए इजी बन जाता है. ठीक है? ओके, नेक्स्ट लेट्स कंटिन्यू ऑन दैट. So, have you understood the mapping, everyone? Mapping समझ में आया आपको? Yes. Yes, sir. Oh, great. Yes, sir. Yeah. Let's continue on that. Then we'll talk about local and global variables. So local versus local and global. ठीक है? सो लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स का क्या होता है कि जब भी ये मेमोरी स्पेस में स्टोर होते हैं तो उनको जो एक्सेस मिलता है, तो उनका एक्सेसिबिलिटी जो रहता है वो रिस्ट्रिक्टेड रहता है. अभी कैसे रिस्ट्रिक्टेड रहता है बताता हूँ. Let us define the function. Let's define the function. Let's take the function as f1 only. And now if I define x equals to pi, we can take it as Solapur. Okay, we'll take it as Solapur. Now I can print x here, and what I will do is I come back here, and if I try to print x here, this will give me an error. This will give me an error. अब देखते हैं क्या एरर होगा, क्योंकि I have defined x inside this function. ये फंक्शन के अंदर है, ये इसका स्कोप कितना है, ये फंक्शन के बीच में ही वर्क करता है. So this becomes a local variable. This becomes a local variable. Here your x is a local variable. X is a local variable. Local variable है. ठीक है? लोकल का स्कोप बोलते हैं. स्कोप ऑफ दैट वेरिएबल इज ओनली इनसाइड दिस फंक्शन. ये फंक्शन के इनसाइड ही वर्क करता है. जब ये फंक्शन से बाहर हम लोग उसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, इट विल नॉट गिव अ वैल्यू, और इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर प्रोग्राम टू चेक आउट द एक्स वेरिएबल्स वैल्यू. ठीक है? इसको स्कोप बोलते हैं. स्कोप मतलब उसका कितने तक के रेंज है, या हम लोग किसको एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. अब अगर मैंने s यूज किया, सपोज s इक्वल्स टू सपोज mh लिखा, ठीक है? अगर मैं ये प्रिंट बोलता हूँ यहाँ पे प्रिंट s, और s मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इवन आई कैन डिफाइन इट बिफोर दिस पर्टिकुलर फंक्शन also. Now I defined mh here. I defined mh here, and now if I try to call the function here, मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, मैंने यहाँ पे कॉल किया. जब भी मैं कॉल करूंगा, s की वैल्यू तो मैंने डिफाइन की है, तो यहाँ पे अंदर क्या होगा, x इज सोलापुर प्रिंट करेगा. यहाँ पे प्रिंट s करेंगे तो यहाँ पे वर्क करेगा ये प्रिंट s. बट दिस प्रिंट
मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ इसके बाद भी तो भी नहीं वर्क करेगा. लेट अस सी दैट कि क्या होता है एग्जैक्टली स्कोप. So what is mean by local, what is mean by global variables, we'll try to understand that. Suppose I defined the function fen and I'm not passing any argument as such. I will take x equals to Solapur, ठीक है, and print करूंगा मैं x को, ठीक है, and I will add the print s also here, ठीक है, and s को मैं यहाँ पे define कर लूंगा as a mh, ठीक है, एंड मैं फंक्शन को कॉल भी कर लूंगा. आई विल कॉल द फंक्शन. ना फंक्शन को कॉल करने की वजह से जो x की वैल्यू है वो वहां पे डिफाइंड है, तो आई ट्राई टू प्रिंट x हियर. इवन आई विल ट्राई टू प्रिंट द वैल्यू. आई कैन प्रिंट वैल्यू ऑफ s हियर आल्सो. मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ प्रिंट s जो है. नाउ here till this part everything executes properly, there is no problem about it. और एग्जीक्यूशन यहाँ से शुरुआत होता है. फंक्शन को हम लोगों ने यहाँ पे कॉल किया है, वी हैव कॉल्ड द फंक्शन हियर. तो यहाँ से शुरुआत होती है, ये वाला पार्ट पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद इसको कॉल किया है तो यहाँ पे आएगा, इसको एग्जीक्यूट करेगा, ये प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करने के बाद इसको प्रिंट करेगा. एज एस इज लाइक डिफाइंड इन ग्लोबल फैशन, इट कैन बी यूज्ड इन हियर. हियर दिस इज नॉट अ ग्लोबल. x को यहाँ पे डिफाइन किया ये फंक्शन, सो स्कोप उसके फंक्शन के अंदर ही है. लेकिन अगर हम लोग बाहर यूज कर रहे हैं तो दिस विल से दैट x इज अनडिफाइंड, और यहाँ पे इसको उसका मालूम नहीं कि क्या है x की वैल्यू. सो लेट्स सी हाउ द थिंग्स वर्क एंड विल गेट व्हाट. ठीक है, ओके. एक्चुअली x इट इज टेकिंग अ प्रीवियस वैल्यू. हम लोगों ने ये ऊपर के इसमें फंक्शन में यहाँ पे x लिया था ना, तो उसको ले रहा है. हम लोग एक अलग वेरिएबल लेंगे. सो विल टेक द वैल्यू एज QQ, ठीक है, so that it should not give a confusion or ठीक है, QQ. So if I run this, you'll see that यहाँ पे सोलापुर आया, ठीक है, सोलापुर गॉट प्रिंटेड, ये प्रिंट हुआ. उसके बाद ये वाला प्रिंट एस हुआ, ये प्रिंट MH किया उसने. उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये प्रिंट हुआ MH. सो यहाँ पे MH, ये जो है ना प्लस, यहाँ पे 1 करता हूं मैं जानबूझ के, सो दैट इट विल बी क्लियर. ठीक है, तो यू कैन सी दैट हियर MH1 आया, ये 1 एडिशनल हम लोगों ने लिखा. तो व्हाट इज मीन बाय दैट, ये S ग्लोबल है. Now this works as a global. This works as a global. ठीक है, this is a local. This is a local. ये लोकल है, एंड दैट्स वाई यहाँ पे ये QQ है ना, इट इज सेइंग दैट नेम एरर, नेम QQ इज नॉट डिफाइंड. आपको तो मालूम है QQ हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया है, लेकिन ये बोल रहा है नहीं डिफाइन किया है, बिकॉज ये QQ वेरिएबल है, उसका स्कोप जो है वो इतने फंक्शन के अंदर ही होगा. यहाँ पे हम लोगों ने इसको प्रिंट किया है, इट इज वर्किंग, देयर इज नो प्रॉब्लम. बट यहाँ पे हम लोग जब इसको एक्सेस कर रहे तो वो नहीं कर रहा है. Now, how we can make this particular variable which should work globally? हम लोग इसको कर सकते हैं क्या? We can. अगर मैंने QQ को यहाँ पे भी ये किया, इस वेरिएबल को यहाँ पे भी लिख दिया और उसको वैल्यू दे दी कुछ, like if I give a value to something here, then this can act as a global. But again, there should not be like ये स्कोप का कुछ इश्यू नहीं होना चाहिए. तो टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन, टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डिफाइन इट एज ग्लोबल. सीधा ग्लोबल एक कीवर्ड है, ग्लोबल QQ बोल दे दो, खत्म. यहाँ पे अगर मैंने ग्लोबल बोल दिया, नाउ इफ आई ट्राई टू रन दिस, you can see that the Solapur is printed here. Now this is like I can add up with globally करके, और ये यहाँ पे मैं लोकली करता हूँ, दिस इज लोकली, सोलापुर लोकली, सोलापुर ग्लोबली. ठीक है, you'll see that, you can see that Solapur locally and Solapur globally.
Getting it? Yes. Are you getting it? Yes. So what do you mean by Yes, global and what do you mean by local? ये इसके ऊपर भी ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. What kind of a tricky question that can be asked up? Look, अभी और एक करके देखेंगे. So that define function a comma b. ठीक है? And then I will have a equals to 10 now and b equals to 20. And now if I try to have this thing, okay, let's take that sum equals to a plus b, but we have not defined the sum, right? So what I can do is function ऐसे कर देंगे and यहाँ पे इनको a और b को global a and global b, global a और global b बोल देता हूँ. And now if I try to print and if I try to 20 and 40, ठीक है, print the sum. So what will be the value of this statement? ये जो sum है उसका value क्या आएगा बोलो? What will be the value of this sum? It should be 30. यहाँ पे जब भी हम लोग ये आर्ग्यूमेंट करके 20 और 40 पास भी कर रहे हैं, लेकिन we are changing in here. So if I run this, okay, what happened? Oh yes, एक्सक्लूसिवली हम लोग को इनको लिखने की भी जरूरत नहीं है. एक्चुअली जब हम लोग पैरामीटर करके पास कर रहे हैं तो दे ऑलरेडी आर ग्लोबल. ए एंड बी अगर पुराना ले लिया इसने तो आई रियली माइंड अबाउट इट. सो लेट्स टेक डब्ल्यू एंड दिस इज इंस्टेड ऑफ डब्ल्यू बी, इसकी जगह पे हम लोग ए बी बी ले लेंगे एंड दिस शुड बी ए बी बी. ठीक है, एंड हियर आई विल यूज इट एज ए बी बी. यहाँ पे हम लोग को कंफ्यूजन क्या हो रहा है, जो हम लोग ये कर रहे हैं ना, AA is not defined and BB is not defined. That's why it is giving us error. हम लोग इसको वापस से ले लेंगे AA and BB and okay, parameter and global. Now here it is not possible to have the same name as a ये parameter and it should not be a global at a time. ठीक है, तो दोनों भी नहीं हो सकता है. This is what is the error. So to overcome this problem, what I can do is I will use this have as an x and this is an y, and then I can assign the values. A को मैं x assign कर दूंगा and BB को मैं y assign कर दूंगा. So this way we can assign the values to avoid the confusion. उसको खुद को confusion होता है कि वो मैं पैरामीटर करके लूँ या ग्लोबल वेरिएबल करके लूँ. So to avoid that confusion, now this is giving me a 30 value. So x comma y जो है, this is a different naming convention which we are using for the parameter passing. A and BB are my local variable, but I defined them as a global. मैंने उनको global करके define किया है. Now I am assigning the x and y value. अगर मैं यहाँ पे ये दोनों को निकाल देता हूँ, if I remove this thing, like if I don't assign that, then whatever arguments I am passing up, 20 or 40, तो 20 और 40 का एडिशन होगा यहाँ पे सीधा, and I will get the 60 as an answer. अगर मैंने यहाँ पे 200 कर दिया और यहाँ पे 40 कर दिया, तो I will get 240 as an answer for that. ठीक है, एकदम सिंपल, as simple. Yeah, please, Jagdish.
He is very busy actually. People need to become very mature actually. हो जाएगा वक्त के साथ. आगे आपको भी ये करना है, बहुत जरूरी है. ग्रूम अप पीपल, बी मैच्योर. ये आगे जाके आपको मीटिंग वगैरह भी अटेंड करना है. आगे जाके तुम लोगों को कंपनी में भी ये काम करना है. जब कंपनी में ये ऐसी चीजें करोगे तो अगर गलती हो गई वहां पे तो गलती का फटका डायरेक्टली तुम्हारे जॉब से होगा. इतना ध्यान में रखो. अभी तो कैजुअल चलता है, देयर इज नो नथिंग मच टू लूज अबाउट. बट वंस यू गो विद दिस काइंड ऑफ एन एटीट्यूड राइट देयर इन द कंपनी, देयर विल बी अ बिग किक इन योर एस. ठीक है, पिछवाड़े पे बहुत बड़ी लात पड़ेगी और जाओगे फिर बाहर घूमने के लिए. ठीक है ना. तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड. आई एम यूजिंग हार्श वर्ड बट इट इज द नेसेसरी थिंग. ठीक है जगदीश बाबा, ट्राई एंड अंडरस्टैंड. इट्स नॉट योर पर्सनल स्टफ. ठीक है, आपके लिए नहीं है, बट इट्स ग्लोबली फॉर एवरीवन, नॉट लोकल फॉर यू. ठीक है, सबके लिए ही है. ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस लोकल एंड ग्लोबल. इसमें और ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बाबा अगर मैंने यहाँ पे लोकल तो एरर आएगा कि नहीं आएगा. मैंने ग्लोबल डिफाइन किया है तो कैसे होगा. यहाँ पे मैंने यूज किया है तो कैसे रहेगा उसका वैल्यू. सो लाइकवाइज यू विल कम टू नो अबाउट डिफरेंट स्टफ्स ऑल टुगेदर. ठीक है, अलग अलग स्टफ्स जो है वो आपको समझ में आएंगे. Okay, let's continue on that note, and I just like need to check out what we are like about to. हम लोगों ने क्या क्या बोला था. ग्लोबल वेरिएबल हो गया, लोकल मैपिंग हो गया, स्वैपिंग हो गया, and now we'll go with the file handling. What is mean by file handling in first place itself? ठीक है, let's talk about it. So what is mean by file handling? ठीक है, now when you talk about file handling, ठीक है, in Python, file, ठीक है, फाइल हैंडलिंग इन पाइथन. ठीक है, तो when we talk about file, that file can be a text file. टेक्स्ट फाइल रहती है. ठीक है, एंड इट कैन बी अ बाइनरी फाइल आल्सो. पर बाइनरी फाइल हम लोग नहीं देखेंगे. वी डोंट गो इन द बाइनरी फाइल, विल नॉट गो. नाउ फाइल क्या रहता है मेमोरी में. जब भी आप स्टोर करते हो दिस विल क्रिएट अ फाइल विद नेम. एक नेम रहेगा, उसका फाइल का नाम रहता है ना. फाइल को हम लोग ओपन कर सकते हैं एंड इसको क्लोज भी कर सकते हैं. वी कैन ओपन दिस फाइल एंड क्लोज दिस फाइल. नाउ ओपन दो चीजों के लिए कर सकते हैं, एक रीडिंग के लिए और एक दूसरा रहता है राइटिंग के लिए. ठीक है, रीडिंग इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. राइटिंग में दो तरीके होते हैं, एक राइटिंग प्लेन राइटिंग होता है और एक अपेंडिंग होता है. राइटिंग इज ओवर राइटिंग, मतलब अगर मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, मैंने क्लोज कर दिया फाइल, वापस से आता हूँ, वापस से लिखता हूँ तो यहीं पे लिखेगा अगर मैं राइट करता हूँ. तो अगर मैं अपेंड बोलता हूँ तो यहाँ पे पहले कुछ लिखा हुआ है, मैंने उसको ओपन किया, वापस से अपेंड कर रहा हूँ तो वो उसके आगे लिखेगा, उसके आगे लिखेगा. जब भी मैं अपेंड करता हूँ, अपेंडिंग इज फॉर द नेक्स्ट, आगे उसके आगे जो एग्जिस्टिंग है उसके आगे लिखने के लिए. तो देयर आर लाइक different stuffs that we can use it. ठीक है, so let us see that इसमें क्या होता है. जब भी ये फाइल नेम होता है, उसको ओपन करना है, क्लोज करना है, उसके हिसाब से उसके फंक्शंस रहते हैं, फाइल के रिलेटेड फंक्शंस होते हैं. तो we will try to work out with that. ठीक है, so we need an handle. हैंडल मतलब ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना. ठीक है, in case of any programming language, when we talk about handle or object is accessing this particular stuff from the memory. मेमोरी से कुछ अगर आपको एक्सेस करना है तो उसका एक हैंडल या ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर अ प्रोग्राम. जो अंडरस्टैंडिंग, जो इंटरप्रेटर है उसको भी अंडरस्टैंडिंग के लिए इजी जाए, और जो पर्सन उस प्रोग्राम को लिख रहा है उसके लिए भी इजी रहे, उसके लिए भी इजी रहे. लेट्स ट्राई टू वर्क आउट विद दिस फाइल हैंडलिंग. अब यहाँ पे ये फाइल
हैंडलिंग की जरूरत क्यों है, सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज है। हम लोगों को समझना क्या है कि हम लोगों को अगर फाइल में लिखना भी है तो क्यों लिखना है। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। एंड ये जो कंपनी में वगैरह यूज किया जाता है ना, तो बहुत ज्यादा और सोफिस्टिकेटेड तरीके से यूज होता है। Let us imagine a simple example. Let us take an example of Axis Bank. ठीक है, Axis Bank या कोई भी बैंक, I am not like Axis is not my favorite bank as such. Don't worry about it. Any bank, it is having a net banking facility है. उसके बाद your UPI facility है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है. ठीक है, even they have like मोबाइल बैंकिंग, SMS बैंकिंग. ठीक है, अलग अलग फैसिलिटीज है. नो, इवन देयर इज अ डीमैट काइंड ऑफ एन अकाउंट. डीमैट अकाउंट है जो शेयर मार्केटिंग वगैरह के लिए यूज होता है. तो ये अलग अलग क्लाइंट्स है, एक्सिस बैंक के अलग अलग क्लाइंट्स है. तो क्या होता है, जब भी ये वेबसाइट थ्रू, नो, इट कैन एक्सेस थ्रू वेबसाइट, इट कैन आल्सो एक्सेस थ्रू एन मोबाइल ऐप. तो अगर मैं पूरे इंडिया के, अगर मैं उसके यूजर्स बोल दूं, ठीक है, तो टोटल एक्सिस बैंक के सपोज टोटल कस्टमर देर आर लाइक सपोज 20 लाख कस्टमर्स है. आई डोंट नो एग्जैक्ट figure of that. I am considering 20 lakh customer. Or on daily basis, at least out of this 20 lakh, 2 lakh customers throughout India use this website and mobile app. At least बोल रहा हूँ मैं. The number is still very high. Like इससे भी ज़्यादा हो सकता है. It can be more than this. ठीक है. So 2 lakh. Let us consider that 2 lakh people are accessing the website and ये. तो जब भी ये एक्सेस कर रहे हैं तो वट एवर द ट्रांजेक्शन्स आर हैपनिंग. ठीक है, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मोबाइल पे कर रहे हैं, मोबाइल के ऊपर से बिल वगैरह जनरेट हुए, पे कर रहे हैं. तो ऑल दीज ट्रांजेक्शन्स आर कंप्लीटिंग. एंड इसके साथ एक ट्रांजेक्शन आईडी रहता है. ठीक है, डेट रहता है, टाइम रहता है. तो ये सब जो है, ये डेट, टाइम, ट्रांजैक्शन आईडी, सोर्स, उसके बाद डेस्टिनेशन, उसके बाद मतलब किसके अकाउंट को गया, किसके अकाउंट से गया, उसके बाद टाइम होने के बाद आपका इसके साथ डेट एंड टाइम स्टैम्प के साथ आपका आईपी एड्रेस, जहां से आपने एक्सेस किया था, वो भी आईपी एड्रेस भी आता है उसके साथ. तो पूरा का पूरा रिसिप्ट बनता है ये. ठीक है, पूरा रिसिप्ट बनता है. ये रिसिप्ट जो है, ये रिसिप्ट जो बना हुआ है, वो रिसिप्ट इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट फाइल स्टोर होते जाते हैं, ठीक है. इसमें इंक्रिप्शन वगैरह भी बाकी बहुत सिक्योरिटी के फंडास रहते हैं, बट विल इमेजिन दैट सिर्फ ये टेक्स्ट बनेगा. अब ये टेक्स्ट जब भी स्टोर करना है तो आई नीड एन फाइल एंड आई नीड टू हैंडल इट विथ फाइल हैंडलिंग. ठीक है, तो इसको मेरे को पहले जब भी तैयार करना है, आई नीड टू क्रिएट अ फाइल. फर्स्ट इज इन क्रिएट फाइल विद द नेम, क्रिएट अ फाइल. उसमें राइटिंग करना है और अपेंड करना है, लिखना है या उसके साथ अपेंड करना है, और उसको स्टोर कर देना है. मतलब whatever I write it, actually it gets stored inside that. And whenever the customer asks कि बाबा ये डेट से ये डेट में मेरे क्या ट्रांजैक्शन हुए थे, मतलब सपोज एक एक्स डेट है और दूसरा वाई डेट है, इन दोनों के बीच में मेरे क्या ट्रांजैक्शन हुए थे उसके डिटेल्स. तो यहाँ पे उसको फाइल्स को रीड भी करना पड़ता है, सो राइटिंग, स्टोरिंग एंड रीडिंग, ये सब होता है. सो लेट्स सी how we can do that stuff in this particular Python language. So for that sake, we'll go back here. ठीक है, I will go with the new code. To check out with the file, अभी ये जो है हमारा जो Python का ID है, हम लोग जो Google Colab environment यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ये environment जो यूज कर रहे हैं, यहाँ पे ये क्लाउड से कनेक्टेड है. What is mean by cloud? A computer from the Google server. A computer from the Google server we are using. तो यहाँ पे ये साइड पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे एक फोल्डर वाला सिंबल है.
ठीक है, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक सैंपल डेटा और यहाँ पे ये फोल्डर में कंटेंट्स दिखा रहा है। तो हम लोग जो भी फाइल क्रिएट करेंगे या हम लोग जो भी फाइल तैयार करेंगे तो ये यहाँ पे दिखेगी। यहाँ पे हम लोग कैसे पहुंचे, आई विल क्लोज दिस वन। यहाँ पे एक सर्च का सिंबल है, फाइंड का, और उसके बाद यहाँ पे जो है कोड स्निपेट का एक सिंबल है और यहाँ पे फाइल्स का एक सिंबल है। तो मैं फाइल्स के सिंबल पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे को दिखेगा। यहाँ पे आपका गूगल ड्राइव भी इसको माउंट कर सकते हो, आपके खुद की गूगल ड्राइव में भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, आप खुद के गूगल ड्राइव में भी काम कर सकते हो, देयर इज नो बिग डील। आप गूगल ड्राइव में भी काम कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट इट। नाउ लेट्स डू, यू कैन सी दैट सैंपल डेटा के नीचे यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं है, अभी फिलहाल कोई भी फाइल नहीं है, हम लोग अभी क्रिएट करेंगे। सो लेट अस डू दैट। f इज इक्वल टू f, हम लोग एक हैंडल को नाम दे रहे हैं। f की जगह पे आप जो चाहिए वो नाम दे सकते हो, देयर इज वेरिएबल हैंडल नेम। ठीक है, ओपन, किसको ओपन करना है, वी नीड टू ओपन द फाइल, बट वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। ठीक है, लेकिन हम लोग को ओपन करना है, लेट्स डू दैट। ठीक है, सो विल ओपन द फाइल। सो व्हाट इट विल डू इज इट विल ओपन द फाइल विद द स्पेसिफिक नेम। नाउ अगर मेरे को एक स्पेसिफिक नाम से करना है तो उसको चाहिए भी ना, वो फाइल वहां पे ऑलरेडी फाइल रहनी चाहिए। तो अगर वहां पे फाइल नहीं है तो वी विल नॉट बी एबल टू रीड दैट। ठीक है, विल नॉट बी एबल टू रीड दैट फाइल। तो उसके लिए हम लोग को पहले क्रिएट करना पड़ेगा या उसको तैयार करना पड़ेगा, और तैयार करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको राइटिंग करेंगे, उसको राइट करेंगे। ठीक है, विल ट्राई टू राइट दैट। ठीक है, अब उसके लिए ओपन बोलने के बाद मैं उसको नाम दे दूंगा, विल नेम इट एज माई फाइल डॉट टीएक्सटी। टीएक्सटी देना जरूरी है, अगर वो टेक्स्ट फाइल करके हम लोग को। अब मेरे को इसको राइटिंग मोड में लिखना है तो आई विल राइट इट एज डब्ल्यू, आई विल राइट इट एज डब्ल्यू। ठीक है, this this statements opens this file with this particular file name myfile.txt। ये नाम को राइटिंग मोड में ये करेंगे। नाउ आई कैन राइट f डॉट राइट। f डॉट राइट इज अ फंक्शन। अब इसके अंदर क्या लिखना है मेरे को, आई एम राइटिंग फर्स्ट लाइन। ठीक है, राइट, सो आई एम राइटिंग फर्स्ट लाइन, ये कंटेंट इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर स्टोर हो जाएंगे। सो विल क्लोज दिस फाइल ना, क्लोज, f डॉट क्लोज, मैंने जैसे बोला था वैसे। नाउ इफ आई रन दिस फाइल, यहाँ पे आउटपुट पे कुछ भी नहीं दिखेगा मुझे। यहाँ पे अभी मैंने ये साइड वाला जो चालू किया है उसी को देखने के लिए, ये इसका क्या परिणाम होता है वो देखने के लिए। माई फाइल डॉट टेक्स्ट जो है, ठीक है, यहाँ पे जो दिख रहा है हम लोगों ने नाम दिया है ना माई फाइल डॉट टेक्स्ट, तो ये नाम से एक फाइल क्रिएट होगी। ये क्या तैयार करेगा, एक फाइल तैयार करेगा, और वो कहाँ पे स्टोर होगी, यहाँ पे। अगर यही पाइथन का कोई दूसरा आईडी यूज करके आप अगर तैयार करते तो ये वाली फाइल जो है वो ये आपके कंप्यूटर पे स्टोर होती थी। यहाँ पे अभी हम लोग क्लाउड से एक्सेस कर रहे हैं, तो इट इज गेटिंग स्टोर्ड ऑन क्लाउड ऑन दी गूगल सर्वर। ठीक है, so let us see if I run this file or run this code। यहाँ पे नीचे तो कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं हुआ है, यहाँ पे नीचे कुछ हुआ है क्या, नहीं हुआ है। नाउ टेक अ लुक एट सैंपल डेटा के बाजू में, देखो यहाँ पे सैंपल डेटा में अभी फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा है। अभी दिखा, यू कैन सी दैट माई फाइल डॉट टेक्स्ट, यहाँ पे ये बन चुकी है फाइल। एंड इफ आई डबल क्लिक ऑन दिस, ये साइड पे इसको ओपन किया है इन्हें। What has happened is this side पे, on this side this particular file has opened। I am writing first line, ये वाला उसमें write हुआ है। Getting it everyone? Now जो मैं बोल रहा था, what I was talking about, अगर मैं यहाँ पे change करता हूँ, this is
दिस इज फर्स्ट लाइन ऑफ कोड, ठीक है, दिस इज फर्स्ट लाइन ऑफ कोड, राइट। अभी ये क्या होगा, जैसे ही ये मैं रन करूंगा फाइल को, ये मेरे प्रोग्राम के कोड को, तो ये क्या करेगा, ये जो एग्जिस्टिंग लाइन है ना, ये एग्जिस्टिंग लाइन को ओवरराइट कर देगा, ओवरराइट कर देगा। लेट्स सी, आई विल क्लोज दिस वन। ये जो फाइल है उसके अंदर के कंटेंट्स देखेंगे हम लोग। नाउ आई विल रन। फाइल एग्जीक्यूट हो चुकी है, फाइल एग्जीक्यूट हो चुकी है, ठीक है। अब देखेंगे क्या होता है अंदर। सो इफ नाउ इफ आई डबल क्लिक ऑन दिस, यू कैन सी दैट जो प्रीवियस था यहाँ पे लिखा हुआ, उसकी जगह पे क्या हुआ है, दिस इज फर्स्ट लाइन ऑफ कोड, राइट, दिस इज फर्स्ट लाइन ऑफ कोड आया है। मैंने पहले क्या लिखा था, आई हैड रिटन दिस स्टेटमेंट, मैंने वो कॉपी करके लिया था, आई हैड रिटन, आई एम राइटिंग फर्स्ट लाइन करके था, उसकी जगह पे ये आया है। अब मेरे को अपेंड करना है, तो मैं इंस्टेड ऑफ दिस डब्ल्यू आई एम टेकिंग ए हियर, मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, ए ले रहा हूँ। So with this A, what happens? We'll see that. So if I run now, I will mark it as this is okay. We can append the data, ठीक है, inside file like this. We can append the data inside the file, like this. Let's run this. So if I run this now, what will happen inside this file? Let's see that what happens. So this is first line of code. We can append the data inside file like this. So this is how the append works. So there is a difference between W and A, ठीक है, जो W और A है ना, उसके अंदर वो डिफरेंस है जो समझना है आपको। append मीन्स वो जो पुराना कुछ भी कंटेंट है उसको डिलीट नहीं करता है, और उसके साथ जो पुराना कंटेंट है उसके साथ ये append कर देता है कंटेंट्स को, ठीक है, ये कंटेंट को क्या करता है, append करता है। Now what you can do is you can always go with the stuff like this। ये इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, आप जो भी डेटा, ठीक है, जो डेटा लिखना है वो आप लिख सकते हो। सिमिलरली with this thing what you can do is, हम लोगों ने राइटिंग देखा, we have seen appending। Now what we can do is we can read this file। अभी ये फाइल हम लोगों ने क्रिएट की है, हम लोगों को देखना भी है। What I can do is, for an understanding, what I can do is I can write this on very first line, I can write in second line, third line, fourth line, fifth line, likewise। मैंने अभी यहाँ पे मैंने मैन्युअली कॉपी पेस्ट किया है, मैंने मैन्युअली, तो so that I should be able to read it। वैसे एक लाइन भी रीड कर ही सकते थे। अभी हम लोगों ने यहाँ पे फाइल को क्लोज किया था। What we can do is we can create another handle। F नाम भी रख सकते, F1 भी रख सकते, there is no problem about it। F1 equals to open, किसको ओपन करना है, my file डॉट txt। अब इसको किस मोड में ओपन करना है, रीडिंग मोड में ओपन करना है। तो रीडिंग मोड के लिए क्या है, R है, इट इज इन R। सो आई कैन ओपन इट इन रीडिंग मोड, R। नाउ आई कैन प्रिंट। ये प्रिंट क्यों कर रहा हूं, मेरे को स्क्रीन पे प्रिंट करना है इसको, उसके लिए। सो इसके अंदर जो ये लाइंस ऑफ कोड्स है ना, ये फर्स्ट सेकेंड बोल के हम लोग ये सेकेंड भी बोल सकते हैं। वी कैन मेक इट एज अ सेकेंड आल्सो, सेकेंड, दिस इज लाइक थर्ड, ठीक है, लाइक फोर्थ, लाइक फिफ्थ, सॉर्ट ऑफ, ठीक है। नाउ I can read this file। So F1 dot read, ठीक है, सिंपली F1 dot read लिख दिया मैंने, तो this will read a complete file। ये पूरी की पूरी फाइल, पूरी की पूरी फाइल ये रीड करेगा। So if I run this,
if I run this, you'll see that you can see that now this line is additionally got appended. It is additionally appended due to this particular. अब मैं जितनी बार ये प्रोग्राम रन करूंगा, every time I will get this particular line. आगे अभी इसके आगे वापस से और एक बार मेरे को ये वाला पार्ट आएगा. We can append. Let's see. You can see that we can append. Another, like if I run this, it has appended. We can go on this side. We can see that we can append this inside like this. अगर मैंने और एक बार रन किया तो वो और एक बार उसमें append कर देगा. Let's try with this slash n on this side also. So if I run this, you can see that we can append the line every time. It will appear on the next line. You can see that. ये जितनी बार रन करेंगे उतनी बार ये लाइन ऐड होते जाएगा. अब ये 3 बार आया हुआ है. अगर और एक बार मैं रीड करूंगा, मतलब ये रन करूंगा तो ये और एक बार. अभी इसमें मजा देखो, अगर मैंने यहाँ पे W कर दिया, if I make it as W, let's see. Oops, I deleted all the contents. मेरे पूरे फाइल के contents delete हुए. Overwriting बोलते हैं इसको, overwriting, and only this statement has been written inside that. So hopefully append, writing and reading, ये तीनों समझ में आए आपको अभी फाइल के अंदर कैसे होते हैं? Have you understood this, everyone? Yes, people. We can write this thing like जिस हिसाब से चाहिए उस हिसाब से हम लोग इसको लिख सकते हैं. कुछ भी नहीं प्रॉब्लम. अब जाएंगे आगे. So let's run this code. Like we will not take this slash n, एक ही लेंगे. And first I will do that. No, मैं क्या कर रहा हूँ, write करता हूँ. I will do the writing of this. मेरा एक लाइन आएगा, उसके बाद मैं append करता हूँ. ठीक है. Now this has appended the data. यहाँ पे मैं वेरिएबल वगैरह लेके भी कर सकता हूँ, मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके भी कर सकते हैं. So this is like 1 2 3 4 5. ठीक है. There are 5 lines. So if I write this f.read 3 and if I run this, so you can see that f1.read up to third number character 0 1 2. ठीक है. नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे 5 करता हूँ तो you'll be able to see that. ठीक है. सो पहला यहाँ पे एक ब्लैंक. ठीक है. 1 2 3 4 एंड ये 5th को ये करता है. तो दिस गिव्स यू फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स. ठीक है. so ये स्लैश एन को एक कैरेक्टर पकड़ रहा है. 2 3 4 और 5. ठीक है. so let's see if I continue like this, like if I make it as 15 or like 115, let's go ahead with 150. Then you'll see that till this part it is taking up 150 characters. Total यहाँ तक के 150 characters है. ठीक है. So this gives you character by character reading. मतलब मेरे को उसमें से कितने characters read करने हैं, मेरे को ये particular file में से कितने characters read करने हैं वो दिखाता है. Now let us go ahead and instead of this, I can also go with print f1 dot read line. ठीक है. Now I can use the size also, but फिलहाल read line बोल देंगे. And if I run this, you can see that वो जो बचा हुआ है we can append के बाद the data inside file like this. ये 150 लिया था उसके लिए. So हम लोग इसको this. So if I go with the read line now,
यहाँ पे मैंने नंबर दिया नहीं ना कुछ, सो आई विल गिव द नंबर एज लाइक 1, ठीक है, या नंबर 2, बस बिकॉज लाइक देयर इज नो, हम लोगों को जो फाइल के अंदर रीड लाइन है, it should be no read line. I don't need to provide any stuff as such. अगर मैं यहाँ पे स्लैश एन करके अपेंड कर देता हूँ if read line, I should be in a position to read this particular read line. read line में कुछ ये हुआ है कि नहीं, let's see. So अगर मेरे को लाइन बाय लाइन रीड करना है, so this should give me a read line by line. F open read में किया है मैंने, I have written it in read line. Every line it should read up. What's the issue? F1 dot close, F1 dot read line. We haven't gone through that. ठीक है, मैं अगर F1 dot read line बोलता हूँ तो it should have gone up with, but why it is not showing me the data? So many lines. Okay, this is like first line is blank. That's why I should now get this run. इसमें से पहला लाइन जो था वो ब्लैंक था. नाउ आई कैन गो अहेड विद दिस. यहाँ पे मैन्युअली मैं इसको V2 बोल देता हूँ, सो दैट नो दिस 3, so that it should get differentiated, and that's why I will run this code. So you can see that मैं रीड लाइन बोल देता हूँ तो पहला लाइन रीड होता है. अगर उसके बाद और एक बार रीड लाइन बोलता हूँ तो ऑटोमेटिकली इट रीड्स द सेकेंड लाइन. एंड अगर मैं इसी को कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है, इफ आई डू द कंटिन्यूएशन इन दैट रीड लाइन, वो तीसरा लाइन रीड कर लेगा. सो लाइन बाय लाइन आल्सो आई विल बी एबल टू रीड दिस. I should be able to read this. So there are like two ways. One is read. सिर्फ read अगर यूज करते हो तो it will read all, like complete file read कर लेगा ये, पूरा का पूरा फाइल रीड कर लेता है ये without any problem. And अगर मैं रीड लाइन बोलता हूँ तो लाइन बाय लाइन it executes and it like jumps on and it reads that particular line. एक के बाद एक के बाद एक रीड करते जाता है ये. So every time it upgrades itself and it reads next line with that particular. ठीक है, so read line अगर मैं बोलता हूँ तो यहाँ पे ये पहला blank था, उसके लिए वो आउटपुट नहीं दे रहा था. Now we can go on, like जितनी बार लिखोगे उतनी बार उसके आगे का लाइन ये रीड करते जाएगा. So what is the basic fundamental understanding out of this particular stuff is, सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोग को ओपन फंक्शन यूज करने को आना चाहिए और इसका एक हैंडल बनता है. सो एफ इज एन हैंडल, ओपन इज एन फंक्शन, उसके बाद फाइल का नाम, यहाँ पे फाइल नेम, ठीक है, फाइल नेम, जो भी फाइल नेम लिखना है, और उसको फिर मोड कौन सा है. मोड इज लाइक रीडिंग मोड है, रीड करना है, राइट करना है या अपेंड करना है. दीज आर डिफरेंट मोड्स दैट यू कैन यूज. ठीक है, तो फाइल नेम, मोड और ओपन. once you open, no, you cannot either read or write without opening the file. जब तक कि आप फाइल को ओपन नहीं करते हो तब तक कि आप ना रीड कर सकते हो ना राइट कर सकते हो. once you open this handle can be used for as per mode. कौन से मोड में ओपन किया है, रीड मोड में ओपन किया है. अगर आपने रीड मोड में ओपन किया है तो आप राइट नहीं कर सकते हो, which is again a different stuff altogether. अगर मैंने यहाँ पे रीड मोड में ओपन किया है फाइल को तो आप उसको राइट नहीं कर सकते, और अगर राइट मोड के लिए ओपन किया है तो यू कैन रीड, बट यू कैन डू बोथ एक्चुअली. राइट मोड में अगर है या अपेंड मोड में है तो यू कैन रीड एज वेल एज यू कैन राइट. बट इन केस ऑफ दिस इट्स प्रॉब्लम, राइट, इसके लिए प्रॉब्लम होता है. सो इफ आई डू दिस ओपन अगेन,
एंड आई कैन गो विथ लाइक, अगर आपने पहले राइटिंग मोड में किया है तो अगेन यू कैन गो विथ द रीडिंग मोड ऑल्सो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एंड इसके अलावा क्या हो सकता है कि ये जब भी आप एफ डॉट राइट या एफ डॉट रीड रीड ठीक है, या रीड लाइन है, यहाँ पे कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी डाल सकते हैं। अगर नहीं डाला तो एंड ऑफ फाइल तक के जाता है, मतलब टोटल जिस फाइल के अंदर जितने भी कंटेंट्स रहते हैं वो सब रीड कर लेता है एफ डॉट राइट में आप जो भी स्टेटमेंट लिखोगे वो आइदर अपेंड होगा या उस, तो स्लैश एन वगैरह भी चलता है, स्लैश टी भी एक्सेप्टेड है, दिस वर्क्स विद दिस पर्टिकुलर एफ डॉट राइट, देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट इट। एंड सब आप रीडिंग हो गया, राइटिंग हो गया, सब होने के बाद यू नीड टू डू विद एफ डॉट क्लोज, it closes that particular file, ठीक है, it closes that file। ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। now if you understood this, there should not be any problem about this particular thing। have you understood this everyone? Yes, are there any queries or questions or anything that you feel कि बाबा ये होना चाहिए? Are there any question? Yes, No, sir. okay, then shall we go with the class then? Yes, sir. Okay, let's go ahead then. We'll talk about it. Let's talk about classes. Now, ab class, what is mean by class and why we need a class and everything. So उसको class क्यों बोलते हैं या class क्या होता है, ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। So when we talk about objects or class, no, object oriented programming, look, usually what happens is in the world, real world scenario, रियल वर्ल्ड सिनेरियो में क्या क्या होता है कि इफ यू टेक एन एग्जांपल ऑफ स्टूडेंट डेटा या कस्टमर डेटा बोलते हैं उसको, कस्टमर डेटा। ना कस्टमर डेटा में क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, कस्टमर का नाम हो सकता है, उसका जेंडर हो सकता है, उसके बाद उसका एज हो सकता है ना, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ। उसके अलावा एज हो गया, डेट और बर्थ हो गया, देन एड्रेस हो सकता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कस्टमर का क्या हो सकता है, यूनिक आईडी हो सकता है, यूनिक आईडी हो सकता है, उसका ईमेल आईडी हो सकता है, उसका फोन नंबर हो सकता है, कॉन्टैक्ट नंबर। सो लाइकवाइज यू कैन गो ऑन लाइक, सो नेम के लिए मेरे को स्ट्रिंग लगेगा, जेंडर आई कैन गो विथ मेल फीमेल और समथिंग लाइक दिस, सो आई कैन गो विथ वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल जो you know, it can be either boolean or it can be a 2-digit kind of and stuff, ठीक है। तो ये उसके लिए ले सकते हैं। एज कैन बी अ नंबर, इंटीजर, सो इंटीजर नंबर हो सकता है। एड्रेस कैन बी अल्फा न्यूमरिक, अल्फा न्यूमरिक बोलते हैं, जिसमें दोनों भी होता है, मतलब वो अगेन स्ट्रिंग ही होता है। यूनिक आईडी कैन बी अल्फा न्यूमरिक और नो, इट रिक्वायर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी हो सकता है। ईमेल आईडी इज अ स्ट्रिंग अगेन, but it's a special string having the @ symbol। कॉन्टैक्ट नंबर कैन बी अ 98, लाइक जो नंबर है 10 डिजिट, कंपल्सरी 10 डिजिट नंबर हो सकता है, सॉर्ट ऑफ। नाउ दिस बिकम्स नाउ particularly, now I want to make a customer data, ठीक है। मेरे को डेटाबेस में कस्टमर डेटा करके करना है तैयार, और लेते वक्त जब भी मैं इनपुट भी लूंगा तो कस्टमर डेटा के हिसाब से लूंगा। तो इस पर्टिकुलर कस्टमर डेटा को इधर क्लास बोला जाता है, क्लास, क्लास कस्टमर डेटा। तो ये जो है नेम, जेंडर, एज, एड्रेस, ठीक है, ईमेल आईडी,
these are all, no, all are members, ठीक है, all members of class, ये क्लास के मेंबर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। टर्मिनोलॉजी समझने की कोशिश करो, मैं वर्ड्स अभी जो यूज कर रहा हूँ, इवन नो ये कस्टमर डेटा में मेरे को कुछ कॉम्बिनेशंस में भी चाहिए, आई कैन यूज द फंक्शन such that it should have a combination of like contact number, email id and name, ये तीनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो मैं एक अलग से फंक्शन लिखूंगा जिसमें ये तीन ही यूज होते हैं, और ये फंक्शन को मैं ये क्लास के अंदर लिखूंगा, और ये सिर्फ मेरे को ये तीन से मेरे को कौन है कस्टमर ये समझ में आना है ना। सो दिस इज माय मेथड टू एक्सेस द डेटा। So this is called as methods. This is called as method. When you have a function, inside a class, it is called as a method. It is called as a method. इसको अलग से नाम दिया जाता है. So you have a members, जो variables है उसको यहाँ पे members बोलते हैं। जो फंक्शन होते हैं, अलग अलग फंक्शंस जो वर्क करते हैं इसके अंदर, क्लासेस के अंदर, उसको मेथड्स बोलते हैं। So class, member, method, ये तीनों समझ में आए, क्लास क्या है, मेंबर क्या है और मेथड क्या है। देन अब ये क्लास जो है, ये क्लास तो मैंने तैयार कर लिया जिसमें मेरे अलग अलग मेंबर्स भी है और अलग अलग मेथड्स भी है, अलग अलग मेंबर्स भी है और मेथड्स भी है। अब मेरे को मेरे जो ओरिजिनल जो मेरा मेन प्रोग्राम है उसमें मेरे को ये क्लास के मेंबर्स को या मेरे मेथड्स को एक्सेस करना है, मेंबर्स को या मेथड्स को एक्सेस करना है। इसके लिए ये क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। नाउ ये जो कस्टमर डेटा है, दिस कस्टमर डेटा कैन बी फॉर द BM, फॉर द लाइक बजाज फाइनेंस के कस्टमर का डेटा हो सकता है। इट कैन बी एन एक्सिस बैंक डेटा, इवन इट कैन बी ऑफ लाइक जो कार वगैरह बेचते हैं, लाइक हुंडई मोटर्स का होता है, हुंडई मोटर्स और होंडा मोटर्स, या टोयोटा या टाटा, कोई भी। तो ये अलग अलग कस्टमर्स है। तो टोयोटा, होंडा, हुंडई, बजाज, एक्सिस, these companies are using this class। ये क्लास कौन सा क्लास है, कस्टमर डेटा नाम का क्लास है। तो मैं एक्सिस बैंक का अगर यूज कर रहे हैं तो वहां पे एक्सिस बैंक सपोज ए है, तो दिस ए बिकम्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास, ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट का यूज करके आप उस क्लास के मेंबर्स को और मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। नाउ आई नो दैट the words are very heavy, like member, method, class, object, भरपूर हे होतं। So for that take an example, let's take an example, ठीक है। अभी एग्जाम्पल क्या होता है, लेट्स टेक नो, कोई भी अगर आप यहाँ पे हम लोगों के पार्क की चौपाटी पे गए हो, ठीक है, पार्क के चौपाटी पे जब भी जाते हो तो इट्स अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस कि बाबा लाइक वहां पे भेल होता है, पानी पूरी होता है, सब होता है, राइट। तो पानी पूरी का अगर मैं ठेला पकड़ता हूँ, कोई भी ठेला है, राइट, बहुत सारे हैं पानी पूरी के, बहुत सारे ठेले हैं। तो नाउ दिस इज लाइक 1 2 3 4, हर एक इसके ऊपर, हर एक इस पे ठेले पे तो काम तो वही है, काम तो वही है, पानी होता है, प्याज और बाकी दाल और ये रहता है और पूरी रहती है, और वो मिक्स करके आपको दे देता है, राइट। तो इसके ऊपर जो मेथड है, मेथड अलग अलग, कभी कभी कोई पहले प्याज डालता है, उसके बाद सेव डालता है और उसके बाद पानी, कोई कोई सिर्फ प्याज सेव वगैरह डाल के, तो अलग अलग मेथड होते हैं, अलग अलग, ठीक है, मेथड अलग अलग होते हैं। तो ये जो है, दिस इज अ क्लास, और इसके ऊपर का जो ऑब्जेक्ट है, ये जो पर्सन जो आपको तैयार करके देता है, दैट इज एन ऑब्जेक्ट फॉर यू, दैट इज एन ऑब्जेक्ट फॉर यू।
तो ये मेथड होता है, इसके अंदर मेंबर्स होते हैं अलग अलग, और अलग अलग मेथड्स होते हैं, एंड ये पर्सन जो आपको एक्सेस करके देता है उस चीज को, इट्स कॉल्ड एज एन ऑब्जेक्ट। सिमिलरली यहाँ पे भी क्लास जब भी हम लोग कोई भी लिखते हैं, जब भी हम लोग अभी एग्जाम्पल लेंगे, दैट विल मेक यू मोर क्लियर टू यू। ठीक है, अभी देखेंगे, लेट्स डू दैट। सो लेट्स डू इट वेरी वेरी सिंपल, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्लास हम लोग ले लेंगे। सो इफ आई गो विद द न्यू कोड, यहाँ पे लिखेंगे क्लास, ठीक है, एंड विल नेम इट एज माई क्लास। माई क्लास करके भी लिख सकते हो, और कुछ भी एज पर योर रिक्वायरमेंट। एंड यहाँ पे मेंबर्स लिखेंगे x इक्वल्स टू सपोज रवि, and as I told you, age is equal to, now I can have like 35, and then I can go with the address. Let's address is like some number, ठीक है, slash ये slash, or rather I will not use slash, dash कर सकते हैं, या and then सोलापुर, ठीक है, and this is my address. Then I can have a contact number, ठीक है, CNT number equals to, like I have 9881 0, ठीक है, this is like my number suppose, ऐसा कुछ तो नंबर है। Now what I want, or I have a function also, I can have a function also, so I can define a function inside this. So define करता हूँ मैं function as my CNT, ठीक है, my contact, और हाँ my CNT करते हैं, मैं email ID भी लिखता हूँ, email बोलता हूँ, and it's again a text, it's a@b.com, ठीक है। Now in my contact CNT, ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, I can go with some method, ठीक है, to update my contact details, ठीक है। तो I can take this as I can take this as like यहाँ पे इसमें हम लोग नाम क्या करेंगे, कुछ तो कर सकते, नो जाने दो, ये बाद में ही बोलता हूँ मैं, दैट विल गिव यू डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर। नाउ दीज आर ऑल आर मेंबर्स, ये मेंबर्स है किसके, ये क्लास के, क्लास क्या नाम है, माय क्लास करके। नाउ लेट्स गो अहेड एंड आई एम इन माय मेन प्रोग्राम। नाउ इन मेन प्रोग्राम लेट्स टेक एन ऑब्जेक्ट। सो आई विल टेक माय ऑब्जेक्ट एज P1 या P1 ले लेंगे, P1 इज माय ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। तो माय क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया मैंने P1। नाउ दिस P1 मैं जानबूझ के यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि ये वर्ड्स आपने कभी भी सुने नहीं है। आई कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड दिस, बट अगर आपको एक बार ये लॉजिक समझ में आया तो देन इट बिकम्स वेरी इजी। P1 इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ माय क्लास, ठीक है, एंड दीज आर ऑल मेंबर्स। X is member of my class, ठीक है। This my class is name of class, ठीक है। ये सब मेंबर ही है, ईमेल है, CNT नंबर है, एड्रेस है, एज है, ये सब मेंबर्स है। अब ऑब्जेक्ट है, P1 is an object. Now I want to access the contents। तो कैसे एक्सेस करना है, तो उसके लिए सिंपल प्रिंट, मैंने बोला था ठेले वाला क्या करता है, ठेले वाला आपको देता है। नाउ यहाँ पे P1 जो ठेले वाला है, मतलब वो ऑब्जेक्ट है P1 डॉट कौन डॉट x। P1 डॉट x अगर मैं करता हूँ तो व्हाट शुड आई गेट हियर, आई शुड गेट हियर एज अ रवि, ठीक है। मेरे को क्या मिलना चाहिए एज आउटपुट, रवि मिलना चाहिए। सो इफ आई रन दिस यू कैन सी दैट आई हैव एक्सेस्ड, मैंने क्या किया यहाँ पे एक्सेस किया। अब क्लास का फायदा क्या होता है, यहाँ पे ये जो x वैल्यू है और ये जो क्लास है,
This is a common place. This is a common place, but it's not a common memory. It will be storing the memory in the different. Now let's go ahead. अभी देखते हैं मजा. अभी मैं क्या करता हूँ, दूसरा ठेले वाला बनाता हूँ. P2 is my class. So जब भी मैं एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ एंड इफ आई ट्राई टू प्रिंट P2 डॉट एक्स, ठीक है. अभी थोड़ा ध्यान दो, ये वाला अगर कंसेप्ट समझ में आया तो तुम्हारा क्लासेस का कंसेप्ट खत्म हो जाता है. इतना अच्छा है ये लॉजिक. तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, अभी आई क्रिएटेड अनदर ऑब्जेक्ट. ठीक है, P2 इज अनदर ऑब्जेक्ट. P2 ऑब्जेक्ट ऑफ माय क्लास. ठीक है. Now if I run this, it will give me Ravi. ठीक है, it will give me Ravi. Now अभी क्या करता हूं मैं, P2 डॉट एक्स को मैं अपडेट करता हूं, रवि की जगह पे अजय कर देता हूं. ठीक है, राइट. I will make it as an Ajay. Now if I try to print P2 dot x, ठीक है, now you will see that Ravi and then Ajay. But अभी मैं print dot P1 dot x करता हूं तो what should be there? क्या आना चाहिए यहाँ पे? यहाँ पे क्या आना चाहिए? What do you expect? यहाँ पे P1 dot x करने के बाद क्या आना चाहिए? From your perspective, P1 dot x करने के बाद क्या आना? क्या आना चाहिए? रवि. Let's see. Very good. You people have followed it then. It's a Ravi. What is meaning of this is, look, यहाँ पे जब भी मैं ये थोड़ा सा अगर कंसेप्ट समझ में आता है ना, मैंने क्या किया है, एक क्लास बोला है, दिस इज माय क्लास, राइट. ये माय क्लास करके है. तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, जो भी लिखा है, एज है, नेम है, तो दीज आर लाइक मेंबर्स. ये मेंबर्स है, मेंबर्स. ठीक है. अब इसके अंदर मैं क्या भी लिख सकता हूँ, मतलब बहुत सारे मेंबर्स भी लिख सकता हूँ. देयर इज नो प्रॉब्लम अबाउट इट. दिस इज अ क्लास एक्चुअली. ठीक है, ये क्लास है. अब मैं इसके नाम का P1 डॉट माई क्लास ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ. ठीक है, P1 और अदर आई शुड बी ये ऐसे डायरेक्टली नहीं ये कर सकता मैं. P1 इक्वल्स टू माई क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ. व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम डूइंग अ माई क्लास ऑब्जेक्ट. ठीक है, मैं क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ. ठीक है, इसमें मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ. किस हिसाब से बना रहा हूँ, P1 इक्वल्स टू माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ. P1 इज इक्वल टू माई क्लास नाम का एक ऑब्जेक्ट. तो ये P1 जो है वो मेमोरी में एक ऐसा स्पेस बना देता है जिसमें एज, नेम और ये सब P1 से हैंडल होते हैं. दिस मेमोरी स्पेस belongs to ऑब्जेक्ट P1. ये ऑब्जेक्ट P1, तो ऑब्जेक्ट जो बोलेगा ना, ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही ये मेमोरी एक्सेस होगी. नाउ जब मैं ये P2 इक्वल्स टू माई क्लास बोलता हूं ना, P2 इक्वल्स टू माई क्लास, तो ये क्या बनाएगा, अनदर एज, नेम, जो भी आप मेंबर्स लिखे हैं ना पूरे, एंड दिस मेमोरी पार्ट बिलोंग्स टू ऑब्जेक्ट P2. ये P2 को बिलोंग करता है. क्या करता है, ये P2 को बिलोंग करता है. ये समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग इट एवरीवन? यस. सो ये इंडिपेंडेंट मेमोरी होती है, ये इंडिपेंडेंट. यहाँ पे क्लास आपको एक ही बार लिखना है, ओनली वन टाइम, and then you can use this class as per the number of objects, and that's why this kind of an programming. now यहाँ पे जो भी आपने लिखा हुआ है,
जो भी लिखा हुआ है ओनली वन टाइम आपको लिखना है यहाँ पे, जो भी लिखना है, और जितनी बार आपको उसको यूज करना है, जो जो ऑब्जेक्ट करके लिखना है. That's why this particular programming language is called as object oriented programming language. मतलब क्या है, जो ऑब्जेक्ट आप यूज कर रहे हो उसके ओरिएंटेशन, उसके रिक्वायरमेंट, उसके यूज के हिसाब से आपका प्रोग्रामिंग रहता है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज एन ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ना, ऊप्स का कंसेप्ट बोलते हैं. ठीक है. हैव यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर स्टफ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये पहला कंसेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है. जो आप अगर समझ आ गया है तो बहुत अच्छी बात है. Yes, people, have you understood what is mean by object-oriented programming? Yes, sir. Yes. Yes, sir. If you understood this, we will go ahead then. Let me know. Have you understood this, everyone? And then Yes, we'll sir. see how. Great, great, great. Let's take an example now. Let's take an example. So, what example we can give is okay. Let's take an example as class my car. Okay. Let's take color. It's like I can initially give a red, and then company. ठीक है. कंपनी बोलते हैं इसको हम लोग ऑडी. ठीक है. wheels, I will have like a 4-wheel, and I can have fuel type. Fuel type I have like EV, electric vehicle hai suppose, and then I can go with something else also. Now let's take that I have like 3 cars. I have 3 cars. Then I can create an object of these as a 3. So C1 is my car object. C2 is my car object, and C3 is again my car object. So C1, C2, C3 are my 3 cars. मेरे पास 3 कार है suppose. Let's take and consider that. ठीक है. मेरे पास 3 कार है. Now what I can do is C1 dot color. So C1 dot color जो है, देखो यहाँ पे जो इनिशियल लिखा हुआ है ना, इट इज नॉट नेसेसरी. इट इज नॉट नेसेसरी. ये हम लोग डिफॉल्ट वैल्यू बोलते हैं ना, वैसे लिखा हुआ है. डिफॉल्ट वैल्यूज की जगह पे ये लिखा हुआ है. अगर डिफॉल्ट वैल्यूज की जगह पे आपको कुछ दूसरा लिखना है तो भी आप लिख सकते हो. दिस इज द डिफॉल्ट वैल्यू. अगर कुछ नहीं है, मतलब आपने उस ऑब्जेक्ट, जब आप ऑब्जेक्ट कर रहे हो तो इनिशियली उसमें क्या स्टोर होना चाहिए. अगर मैं, देखो मैं इनिशियली अगर मैं ये 4 मेंबर्स को एक्सेस करता हूँ, C1 डॉट कलर प्रिंट, C1 डॉट कलर कॉमा C1 डॉट कंपनी. ठीक है. उसके बाद C1 डॉट व्हील्स. ठीक है. एंड C1 डॉट फ्यूल. ये अगर मैं प्रिंट करता हूं, एंड सिमिलरली इफ आई गो एंड प्रिंट फॉर C2 ऑल्सो, मैं C2 के लिए भी करता हूं, और C2, and now if I print it for C3 also, what happens is by default all these things will be same. Now if I run this, I will get red Audi 4 EV. You can see that red Audi 4 EV. Now if I try to change, मैं अभी suppose C2, मेरा C1 यही है, suppose red Audi और 4-wheeled है and EV है. मेरा C2 जो है, C2 में से जो C2 कलर है वो मेरा सपोज ब्लू है. इट्स अ ब्लू कलर. एंड उसके बाद C2 जो कंपनी है मेरा BMW है सपोज.
BMW है. And C3 जो है, C3 जो wheels है, I have like let's take it as an 4 itself. There is no big deal. I don't need to change it. It is not necessary compulsory C3 की जगह C2 आना चाहिए. C2 dot fuel जो है वो suppose hybrid है, or even it can go with biodiesel, or it can go with electric vehicle, or it can go with petrol and lot. ठीक है, हाइब्रिड बोल रहा हूँ मैं, हाइब्रिड फ्यूल है. एंड माई जो C3 है ना, C3 डॉट कलर जो है, इट इज सपोज white in color, or I can take black color also. C2 company is like Tesla, suppose. Okay, don't get offended. Sir, C3 Yeah, sir. thank you. I was checking like तुम लोगों का ध्यान है कि नहीं देख रहा था मैं. Just kidding with that. Thanks for correcting it. Okay, C3, and then let's take suppose imagine that Elon Musk has decided to go with the wheels as 6 wheels. So ऐसा कुछ मॉडल लेके आया हो and 6 wheels है उसमें. You can go with 5 wheels also. मतलब एक स्टेफनी करके रहता है, स्टेपनी रहता है, तो स्टेपनी आप यूज कर सकते ही है. एंड C3 dot fuel is don't get offended, I will use as a पेट्रोल. ठीक आहे ना. सर टेस्लाचे कुठे पेट्रोल वरती वर्क करतात का? ठीक है ना, ऐसा प्लीज सोचो मत. जस्ट एज एन एग्जाम्पल करके मैंने लिया हुआ है. नाउ अगर मैं ये तीनों स्टेटमेंट प्रिंट करता हूँ, ठीक है, इफ आई प्रिंट नाउ, सो पहले तो तीनों का तीनों रेड ऑडी 4 ईवी ऐसे आएगा, और बाद में अभी जो हम लोगों ने ये चेंजेस किए है उसके हिसाब से जो चेंजेस आते हैं वो देखेंगे. नाउ यू कैन सी दैट पहला तो C1 का जो कंटेंट है वो वैसा का वैसा रहा जो बाय डिफॉल्ट था. उसके बाद ब्लू ऑडी, ओके, ऑडी कंपनी चेंज नहीं हुआ. व्हाई? we done something? Oh yes, you can see that why it has not changed. The C is capital here, and we have used like here it is capital, but here we have used it small, so we need to change it both the places. Okay, I need to change it accordingly. So you need to be very careful when you are using this. जो भी आप तैयार कर रहे हो, should not get ये. Now you see that like Audi 4, BMW blue BMW 4, and white Tesla 6 and petrol. So likewise you can create. So you should be able to access the things from this particular stuff. So whenever you are using the class जब भी आप यूज कर रहे हो, तो आप यूज कर सकते हो इस चीज को एंड एक्सेस कर सकते हो. ठीक है. अब जब भी आप जो P1 वगैरह है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट जो रहता है, ये ऑब्जेक्ट जो रहता है उसको सेल्फ भी बोलते हैं. द ऑब्जेक्ट नेम इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्फ. ठीक है, इसको सेल्फ करके भी बोला जाता है. इसको क्या बोला जाता है? सेल्फ करके भी बोला जाता है. ओके. अब तुमको लगा की सर हे असं डिफॉल्ट पहिला स्टार्टला रेड ऑडी हे 4 ईव्ही असं करायच्या जागी मी माझ्या स्वतःचे जे व्हॅल्यूज आहेत ते स्वतःचे व्हॅल्यू मी इथे या ब्रॅकेट मध्ये टाकून ऍज अ आर्ग्युमेंट पास करून मी वर्कआउट करू शकतो का? तर त्याला म्हणतात इनिशियल. याला आपण इनिशियल व्हॅल्यू म्हणूनच टाकलेले आहेत ना. मग याला एक इनिट नावाचा फंक्शन आहे, इनिट नावाचा मेथड म्हणतात त्यालाच नाव कन्स्ट्रक्टर पण आहे. ऍक्च्युली हे टेक्निकल नावं आहेत आणि हे एकाच दिवसात समजावेत अशी अपेक्षा बिलकुल करू शकत नाही कुणीही तुमच्याकडून. पण तरी पण मी एक समजावण्याचा प्रयत्न करतो. लेट अस इमॅजिन आता चार तर चार, ठीक आहे, आता हे कळालंय आपल्याला. ठीक आहे, आता काय करूयात, आपण हाच क्लास घेऊयात आणि तयार करूयात. लेट्स गो अहेड विथ अंडरस्टँड init method.
ठीक है, विल अंडरस्टैंड इनिशियलाइजेशन मेथड, इसी को कंस्ट्रक्टर भी बोला जाता है, ऑल्सो कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर, इसको ऐसे ही बोला जाता है, कंस्ट्रक्टर करके भी बोला जाता है. लेट्स टॉक अबाउट दिस. सो व्हेन यू डिफाइन दिस क्लास, इंस्टेड ऑफ इनिशियल वैल्यूज, इनिशियल वैल्यूज की जगह पे विल चेक आउट. लेट्स गो अहेड विद दिस. ठीक है, लेट्स गो अहेड विद दिस. हम लोग क्या करेंगे अभी, यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करेंगे एंड उसको डबल अंडरस्कोर इनिट एंड डबल अंडरस्कोर is very important thing, is a very important thing. Now there is a self comma, we know like what we have, like color, and then company, then we have wheels, and then we have fuel, right? out जो ये चार चीजें हैं वो हम लोग को लेने हैं और वो हम लोग ये कंपनी के इसमें लेंगे. अब थोड़ा सा देखो यहाँ पे ध्यान देके, जब मैं यहाँ पे नीचे यहाँ पे P1 is an object of my car or I can take it as C1 also, मैं ऐसा कुछ नहीं है कंपलसरी. ठीक है, माय कार करने के बाद यहाँ पे अगर देखते हो तो हम लोगों ने जो आर्ग्यूमेंट्स यूज किए थे ना, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स, तो वो दिख रहा है. अब इसमें से जो ये सेल्फ है ना, सेल्फ, ये आपका C1 है. C1 इज ऑल्सो सेल्फ. मतलब जब मैं यहाँ पे लिखूंगा तो मेरे को एक्सक्लूसिवली वो C1 है करके बताना नहीं है, मेरे को बताना जरूरी नहीं रहता, क्योंकि वो सेल्फ क्या है वो समझ के लेता है. अब बाकी बचा कलर. कलर में क्या करता हूँ, यहाँ पे C1 में कलर को लेट्स टेक इट एज ब्लू. ठीक है, ब्लू. ठीक है, इसको मैं ब्लू बोलता हूँ. उसके बाद कलर के बाद कंपनी क्या है, लेट्स टेक इट एज BMW. ठीक है, उसके बाद व्हील्स आर लाइक देयर आर लाइक 4 व्हील्स एंड इंस्टेड ऑफ EV, ठीक है, इंस्टेड ऑफ EV इट इज पेट्रोल. अभी यहाँ पे प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. सोहेल यार ध्यान दो यार, डिस्टर्ब होता है. ओके, यहाँ पे अभी ऐसे नहीं लिखना है, अभी रेड नहीं लिखना है. ठीक है, नो ये आर्ग्यूमेंट हम लोग पास तो कर रहे हैं, बट असाइन किसको करना है, असाइन मेरे को किसको करना है, सेल्फ डॉट कलर को, सेल्फ डॉट कंपनी, सेल्फ डॉट व्हील्स, सेल्फ डॉट फ्यूल. इसको क्या असाइन करना है, ये जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है ना, यहां से आर्ग्यूमेंट, ये कलर है कि नहीं, ये मैं इसको असाइन करूंगा कलर को. ठीक है, कलर को, कलर के बाद कंपनी. ठीक है, इसके बाद व्हील, इसके बाद फ्यूएल. हे लिहिलेलं कळणं जरा आवश्यक आहे. मी आता काय सांगितलं होतं, आता जर तुम्ही वरती जाऊन बघितलात तर आपण C1 डॉट, C3 डॉट कलर हे व्हाईट आहे, C3 डॉट कंपनी टेस्ला आहे, C3 डॉट व्हील्स 6, C3 डॉट फ्युएल असं लिहिलं. तर या सेल्फचा अर्थ असा होतो, सेल्फचा अर्थ मी सांगितल्याप्रमाणे ऑब्जेक्टच हा असतो. हा जो C1 आहे ना, तो सेल्फ म्हणून जातो आतमध्ये. मग C1 असेल, हा C2 असेल. ठीक आहे, C2 इज माय कार and then I can have like black, and then I can have Honda, and then I can have 5-wheeled. सर इवन तर करा की सर त्याला. ठीक आहे, and then I can have diesel. ठीक आहे. Now C2 will also be a self.
जेव्हा C2 कारण इंडिपेंडेंटली व्हायला लागलंय, चेक करा. नाव दिस विल बी C1 डॉट कलर इक्वल्स टू, इथं काय हा ब्ल्यू आहे, हा ब्ल्यू इकडून आर्ग्युमेंट म्हणून इथे येतोय, इथून आर्ग्युमेंट म्हणून इथं येतोय. सर आपण इथं बाहेर इनिट वगैरे कुठे लिहिलंच नाही, इनिट लिहिलंच नाही. हे इनिट मेथड बाय डिफॉल्ट ह्याला इनिट मेथड जी आहे ती बाय डिफॉल्ट एक्झिक्यूट होते. डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन रहता है, डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन रहता. सो ये जब भी हम लोग ऐसे पास करते हैं ना कोई भी आर्ग्यूमेंट इसके अंदर, तो C1 यानी सेल्फ, जो ऑब्जेक्ट रहता है वो सेल्फ करके आता है. जो ये पैरामीटर्स हम लोग पास कर रहे हैं वो कंस्ट्रक्टर को जा रहे हैं, कलर जा रहा है, कंपनी नाम जा रहा है, व्हील्स जा रहे हैं, फ्यूल जा. यहाँ पे ABCD भी लिख सकता हूँ मैं, ABCD भी लिख सकता हूँ मैं. आई कैन राइट इट एज ABCD, ऐसे भी. सिर्फ यहाँ पे समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ. नाउ सेल्फ डॉट कलर, सेल्फ डॉट कंपनी, सेल्फ डॉट व्हील्स एंड सेल्फ डॉट फ्यूल. अब मैं C1 अगर करता हूं तो दिस विल बी C1, अगर मैं C2 करता हूं तो C2 डॉट ये जो वैल्यूज भेज रहा हूं मैं. अब मैं इसको अगर प्रिंट करता हूं, नाउ इफ आई गो अहेड एंड प्रिंट, आई विल यूज द अपर, यहाँ पे लिखे हुए हैं वही प्रिंट के लिए यूज कर देता हूँ. नाउ इफ आई डू दैट, नाउ चेक आउट व्हाट हैज हैपेंड इज, ये जो वैल्यूज मैंने लिखे थे, ये जो वैल्यूज मैंने दिए थे, ये जो वैल्यूज मैंने यहाँ पे डाले थे, तो उसका फायदा क्या हुआ मुझे, इसका फायदा क्या हुआ मुझे, इसकी वजह से it become a very easy for me, it become very easy for me to run this thing, and ये values जो है वो directly assign हो जाते हैं. So if I run this, you can see that blue BMW 4 petrol, black Honda 6 diesel. तो मेरे को एक्सक्लूसिवली इंडिविजुअल वैल्यूज को लिखते बैठना नहीं पड़ा, ये इनिशियलाइज हो चुके हैं. तो इनिट मेथड जो है वो बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होती है. यहाँ पे ये मेथड में मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट भी डाल सकता हूँ. प्रिंट, यू विल कम टू नो दैट दिस init method executes every time. This mean by that, इस चीज को देखो, ये अभी ये init method कितनी बार एग्जीक्यूट होगी वो बोलो बाबा, पहले मेरे को कितनी बार एग्जीक्यूट होगी. सांगा बघू किती वेळा एक्झिक्यूट होणार. इट विल गेट एक्झिक्युटेड पहिल्यांदा कधी, जेव्हा मी इथे हा C1 लिहितोय, जेव्हा मी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करतो, जेव्हा मी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करतो त्यावेळेस ही इनिट मेथड एक्झिक्यूट होतेच. मी ऑब्जेक्ट क्रिएट केला की इनिट मेथड एक्झिक्यूट होते. नाउ यू विल सी, मी काय करतो, हे खालच्या ज्या 2 लाईन आहेत ना त्यांना कमेंट करतो. मला आता काय येणार, दिसणार काय, दिस init method executes every time. ही प्रिंट स्टेटमेंट, ही जी लाईन आहे ही दोनदा प्रिंट होते. यू विल सी दॅट, कारण मी C1 आणि C2 असे 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट केलेत. सो इफ आई रन दिस, यू कैन सी दैट इट हैज एग्जीक्यूटेड ट्वाइस. ये 2 बार एग्जीक्यूट हुआ है, ये 2 बार एग्जीक्यूट हुआ है. इनिट मेथड समजणं गरजेचं आहे. जर आता मी इथं C3 लिहिलं अँड माय कार म्हणून लिहिलं, ठीक आहे, माय कार, मला कंपल्सरी नाही, ठीक आहे, की मी सगळे आर्ग्युमेंट्स पासच करावेत. सो लेट्स सी काय होतं ते बघूयात. इफ आय रन दिस, काय होतं, देर आर 4 मिसिंग व्हॅल्यूज विच आर रिक्वायर्ड. ठीक आहे, मग आता काय म्हणतो, हे व्हॅल्यूज मिसिंग आहेत. So what we can do is I can pass the arguments, like I can pass the argument as red, and then can have an Audi, and then I can have like 4-wheeled, and then I can have a petrol ho gaya, EV I can go with, or even I can go with the hybrid.
Now if I run this, you can see that this init method executed 3 times because I created this 3. So 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट केल्यामुळे ही 3 वेळा मेथड एक्झिक्यूट झाली. येते लक्षात? इनिट मेथड कळतंय, क्लास कळाला, ऑब्जेक्ट कळाला आणि त्याच्यानंतर हे काय आहेत त्याचे मेंबर्स आहेत किंवा पॅरामीटर्स बोलतो आपण त्यांना. पॅरामीटर्स बोलते, मेंबर्स बोलते. नो यू कॅन कॉल देम ॲज पॅरामीटर्स, और मेंबर्स. ठीक है. एंड C1 इज योर इज ऑब्जेक्ट. ठीक है. इनिट इज अ मेथड. दिस इज अ मेथड बोलते हैं इसको. हम लोग और मेथड्स, अलग अलग मेथड्स देखेंगे और क्या होता है, कैसे होता है, ये भी देखेंगे. ओके, लेट मी टेक अ पॉज. आर यू एबल टू कोप अप विद दिस? मतलब ये समझ में आया क्या थोड़ा बहुत? तो यस पीपल. Yes, sir. Great. Then we will continue about a few of the different stuffs. क्या क्या अलग अलग मेथड्स होते हैं, क्या चीज होती है, ये सब हम लोग अलग अलग जो चीजें हैं क्लास के रिलेटेड हम लोग देखेंगे. We will try to see that. ठीक है. So for time being today we'll work out with like whatever we had seen. It is more than sufficient. There are like no doubts and questions that you might have. Like if you have any questions or a query or a doubt, feel free to ask.